केंद्रीय हिमालय संस्कृति शिक्षण संस्थान ताऊ अरुणाचल प्रदेश के जीवन में आज एक नए अध्याय का आरंभ होने जा रहा है। आज के इस शुभ अवसर पर उपस्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के निदेशक महोदय डॉक्टर राजीव कुमार सर, सचिव श्री प्रदीप कुमार मोहंती सर, क्षेत्रीय निदेशक श्री राजेश गौतम सर एवं अन्य पदाधिकारीगण, संस्थान के माननीय निदेशक महोदय, आचार्यगण एवं प्यारे विद्यार्थियों, यह हमारे संस्थान का परम सौभाग्य है कि विगत 19 वर्षों से जो हमारे लिए एक अड़चन थी उसको दूर करने के लिए पूरे दिल्ली से एक टीम आई हुई है। हम संस्थान परिवार की ओर से उस पूरी टीम के सभी सदस्यों का हृदय के अतल गहराई से हार्दिक आभार और अभिनंदन करते हैं। आज दो आदर्श वाक्य एक सूत्रता में बदलने जा रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का मोटो है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। केंद्रीय हिमालय संस्कृति शिक्षण संस्थान दाहू का मोटो है आत्मदीपो भव। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम और आत्मदीपो भव के ज्ञान सरणी से जो एक नई ज्ञान गंगा आज से आरंभ होगी, वह आने वाले दिनों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। यह एक सूत्रता आने वाले दिनों में उत्तरोत्तर प्रगाढ़ होगा और विद्यार्थियों के जीवन में नया अध्याय जोड़ेगा। पुनश्चित सुप्रभात, स्वागतम। हम आमंत्रित सभी अधिकारीगणों, निदेशक महोदय सभी से अनुरोध करते हैं कि मंच पर पीछे की ओर दीप प्रज्वलित करें। धन्यवाद। हम संस्थान के निदेशक महोदय जी से अनुरोध करते हैं कि आमंत्रित पदाधिकारी गणों को स्मृति चिन्ह
और अंग वस्त्र प्रदान कर उनका अलंकरण करें। बहुत धन्यवाद सर। यह स्थान हैं कि आप मंच पे आए और बात करें। डॉक्टर गुरप्रीत जोशी सर, अनुरोध करता हूं कि आप मंच पे आए और आज का स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। Whole Himalayan region. Sir, I heartily welcome you to our institute. Shri Pradeep Mohanty ji, the Secretary NRS ji, and Rajiv Kungar ji, who is the Director Academic NRS Headquarters, as well as I heartily welcome Rajesh Gautam ji, who is the Regional Director of Northeast Region, Guwahati, who has already accompanied the other dignitaries to this state, and as well as I think one of his colleagues has also joined with them, Shri Mehndi ji also. I welcome you, sir, on behalf of CHS Dahom, as well as I welcome my colleague in church, AO Dr. M.P. Bora ji, our Dean Student Welfare, Jitendra Joy ji, all the teachers, staff and students. I heartily welcome you for this new beginning of ceremony MOU signing of NRS as well as our institute. I heartily welcome each and every one of you to this mega historical event. I think just as we all very much aware that what we were facing with the situation from last 18 to 20 years, which we have been affiliated with Sampurnana Sanskrit University, a lot of hurdles has come up during this period of time, where as well as we got all the degrees and many things also. We got many things like degree as well as our recognition of our body, both darshans and everything was there in the Sampurnana. But due to the distance, for small kind of mistakes where the name spelling mistakes and many other amendment of syllabus and then having the recognition of the board, it was a great hurdle for us throughout this I think year. And again we always face from the student community as well as whole Himalayan region. But this time when I went to the NRS for the first time, I think Shri Rajiv ji, Rajiv Kumar ji, and as well as Secretary Pradeep Mohanty is very gracefully accepted our
MOU by introducing the new two courses, that is the Bhoti language from the elementary till the senior secondary. That means from the first standard till the even the secondary 12th standard till. That we have the Bhoti language as in as it is recognized. National Open School is a national board of Government of India. So there cannot be any hurdles in between. There won't be any kind of what we were facing. I think that hurdle has been now removed by the NRS. So that's a new beginning for all of us. And then as well as we have requested for the another one, that was the Bodh Darshan in our curriculum, which all the Himalayan region eager to have that culture to be preserved and taken and given to the next future generations. So that also they have very gracefully agreed to introduce in their curriculum course from the I think from the 8th standard till the senior secondary standard, from the 6th standard, so from the primary school to senior secondary school. So from the 6th standard to 12th standard, where we can read, write and give exams from the well recognized board of National Open School, till 6 to 12. That is a great achievement for all the Himalayan regions. I think all the Himalayan people and the community should be very much indebted, grateful for this kind of agreeing and giving the recognition for these two languages. It is a great achievement for all of us. So from that point of view, I think we all from the Himalayan region, we are very much grateful to NRS for giving the due recognition to this Bhoti language, which was very much due. And there is all Himalayan from the Ladakh, from Himachal, from Sikkim, from here, the Bhutan, Arunachal, and many parts of the Darjeeling and many parts of the Himalayan region do still they read and write in the Bhoti language. But the due recognition was not, able to get from the other state or the central government. But which you have recognized from the as a national board, I think it is a great achievement, and we should all give a great applause for that. I think this MOU shall even pave a great way for the integration and recognition of the Bhoti language, which we all are facing right now. We all, the Himalayan region, always say about the to get that recognition in the 8th schedule of the Indian language. Unless and until we teach in our own school and at the primary or the elementary school and the secondary school levels, then how do we get it recognized from the 8th schedule of Government of India, the language which is very much हम लोग जो बात करते रहते हैं 8th schedule में होना चाहिए. But जब तक हम लोग के पास ये recognition नहीं होगा, जब तक नेशनल इंस्टीट्यूट अभी जो नेशनल ओपन स्कूल जो इसको रिकॉग्निशन करके एलिमेंट्री और एज ए कोर करिकुलम में लेके आएंगे, तो कितने बच्चे उसको रीड एंड राइट एंड लिटरेसी का नंबर ऑफ परसेंटेज तो बढ़ेगा. जो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो Bhoti लैंग्वेज को रिकॉग्निशन के लिए चाहिए था, दैट विल गिव ए ग्रेट पे वे, वो एक बहुत बड़ा रास्ता खोलेगा जो रिकॉग्निशन के कारण. सो it will, as I said before, that it will greatly benefit to the whole Himalayan region itself. And then as well as the MOU shall also open up a novel future possibility for the quality development of the student and then of the institute at a large also. I think as the institute को तो फायदा होगा ही होगा, but students को भी इसका बहुत ज़्यादा लाभ होगा, जो कि बौद्ध दर्शन और Bhoti और बुद्धिस्ट आर्ट एंड कल्चर जो हम लोग का 6 से लेके 12 तक क्लास को पढ़ने के लिए मिलेगा. तो हम लोग का जो प्रिजर्व कल्चर और ट्रेडिशन की जो बात करते हैं हिमालयन रीजन का, वो आई थिंक बहुत अभी क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NRS एक रिप्रेजेंटेटिव करता है जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का ऑटोनोमस रीजन है, तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन खुद रिकॉग्निशन दे रहा है. तो आई थिंक इससे बड़ा उपलब्धि, आई थिंक इससे ज़्यादा हम लोग का अचीवमेंट कहीं और होगा नहीं. तो तय दिल से मैं लास्टली अगेन वेलकम यू फॉर दिस ग्रेट इवेंट एंड आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट फ्रॉम ऑल द Himalayan region for coming such a way giving this as an important assignment. I thank you very much and welcome Hafiz to this Himalayan region. Thank you very much. आने वाले समय पर एक नया अध्याय जुड़ेगा और हम आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे.
धन्यवाद सर, हमारे इस अनुग्रह को स्वीकार कर और समय प्रदान करने के लिए। तो हम NIOS के डायरेक्टर सर डॉक्टर राजीव कुमार सर से अनुरोध करते हैं कि आप आज के दिन के ऊपर अपना कुछ वक्तव्य प्रस्तुत करें। जो आज इस मंच का संचालन कर रहे हैं और उद्घोषक भी हैं। At the very outset, I would like to place on record the gratitude and the heartfelt thanks on behalf of entire fraternity of National Institute of Open Schooling, New Delhi, to the Director of Central Institute of Himalayan and Cultural Studies, Damoh, West Cameng District, Professor Dr. Gurmeet Dorje ji, Administrative Officer Bora ji, my colleague Sri Pradeep Kumar Mohanty ji, Secretary National Institute of Open Schooling, हमारे रीजनल डायरेक्टर श्री राजेश गौतम जी, और आपके सामने बैठे हुए एक हमारे मेरी जी भी हमारे साथ आए, और आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। क्योंकि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, व्हाट हैव बीन इंक्ड टुडे बिटवीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज is basically going to matter to the students who are studying here at CIHS West Cameng District. Shall I talking to you in English or Hindi बेटा? हिंदी या अंग्रेजी में? बोथ में? चलिए बोथ में। जैसा कि JK तिवारी साहब ने he talked about the motto of National Institute of Open Schooling and the National Institute of Open Schooling. आपका जो मोटो है आत्म दीपो भवा, बी योर ओन लाइट, एंड मुझे लगता है दिस एंटायर बौद्ध दर्शन और यू मे कॉल इट अ बुद्धिस्ट फिलॉसफी उसमें समाहित है। व्हेन वी टॉक अबाउट आत्म दीपो भवा, इट सिंपली सेज लेट्स ऑल द एंटायर वर्ल्ड फ्रेटर्निटी मस्ट रिविजिट द लाइफ ऑफ गॉड बुद्धा, his values, his ideals, so that the non-violence must instill not only in the individual but into each nook and corner of this entire world. मुझे लगता है इससे बड़ा कोई फिलॉसफी जिंदगी का नहीं हो सकता है जो बौद्ध दर्शन और आत्मदीपो भव में समाहित है। उन्होंने NIS के मोटो पे भी बात की। हम कहते हैं विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या धन जो हम विद्या अर्जन करते हैं, हालांकि एक एकेडमिक डिस्कोर्स है, विद्या शिक्षा में बहुत अंतर है। जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है, जो सनातन परंपरा है या जो बुद्धिज्म की परंपरा है, इसमें विद्या जो है वो बहुत अलग है शिक्षा से, और विद्या धन से बढ़ के कोई धन नहीं है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? एक तरफ विद्या है और एक तरफ जिंदगी को जीने का सिद्धांत है जो हम सबको भगवान बुद्ध ने दिखाया है। इन दोनों का समागम हो रहा है, एक कॉन्फ्लुएंस है, और वो जो कॉन्फ्लुएंस है, वो जो समागम है, वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के रूप में आज यहाँ परिणित होता नजर आया है। जहाँ तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सवाल है, अपने उद्घाटन भाषण में दोर्जे साहब ने भी बात किया है। NIS इज ए नेशनल बोर्ड, हम एक नेशनल बोर्ड हैं। भारत सरकार के दो नेशनल बोर्ड हैं, एक CBSE है जो फॉर्मल स्कूल एजुकेशन में है, और दूसरा एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है जो इनफॉर्मल या एक ऐसा बोर्ड है जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के थ्रू देश के सुदूर कोने में शिक्षा को लेके जाता है या विद्या को लेके जाता है। चूँकि आप बच्चे हैं, कई बार ये सवाल उठती है कि क्या जो CBSE स्कूल से जो बच्चा सर्टिफिकेशन लेके बाहर पास होके निकलता है 10th एंड 12th का, और जो NIS का बच्चा है या वो किसी और अन्य अगर राज्य के एजुकेशन बोर्ड से
10th और 12th पास होके बाहर जाता है तो क्या सर्टिफिकेशन की जो वैलिडिटी है और जो वैल्यू है वो क्या बराबर है? वो बराबर है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है, चाहे वो CBSE की सर्टिफिकेशन हो या NIS की सर्टिफिकेशन हो या किसी भी अन्य राज्य जो एक प्राधिकृत शिक्षा का बोर्ड है, उन सब की सर्टिफिकेशन की वैल्यू बराबर होती है। मुझे याद है कई बार मैंने भी मीटिंग में जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और जो आपका संस्कृत संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के साथ जो आपका चल रहा था, कई बार सवाल उठ रहे थे। गुरमीत दोरजे जी आए थे नोएडा में और मुझे लगता है पहले दिन ही ये स्पष्ट हो गया था कि दोनों संस्थाओं को एक MOU करना चाहिए ताकि आपके सामने जो 10th एंड 12th की सर्टिफिकेशन की कोई इशू ना हो। उन्होंने बताया है, दोरजे जी ने, एक जो भोटी भाषा है, दो भोटी भाषा इज नॉट द पार्ट ऑफ द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दिस लैंग्वेज अनडाउटेडली requires to be preserved, promoted and disseminated in the entire country. As far as my knowledge is concerned, we have worked on linguistics in my organization. Bhoti language, and I will not shy away from using this word, is almost on the verge of extinction. की ज़रूरत है और इसमें जो प्रयास जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज़ का है और साथ में NIS का है, मुझे लगता है आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। जो भोटी भाषा है, भोटी भाषा हम कक्षा पहली से लेके 12वीं तक उस पाठ्यक्रम का कंटेंट है, उसका निर्माण चल रहा है और मुझे खुशी है आप सबको बताने में अगले 2-3 महीने में कक्षा पहली से लेके 12वीं तक भोटी भाषा का निर्माण है। तो बौद्ध दर्शन में अगर हम बौद्ध दर्शन के टेनेट्स को देखें तो उसके कई मल्टीपल पाथ हैं, मल्टीट्यूड पाथ हैं जो लिबरेशन की बात होती है। बेसिकली फिलॉसफी है और मेडिटेशन है। जो बौद्ध दर्शन का जो करिकुलम है, already we have started working on it and we are going to offer Bodh Darshan at the level of class 8th, 10th and 12th in this entire country, including your organization and the students who are studying in your organization. उस बौद्ध दर्शन में जो इतने भी टेनेट्स हैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी का, चाहे वो फेनोमेनोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी है, ऑन्टोलॉजी है, एथिक्स है, लॉजिक्स है, फिलॉसफी है, वो सारा करिकुलम का कंपोनेंट होगा। जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी का जो करिकुलम आएगा, जो नागार्जुन का कॉन्सेप्ट है, जो उस समय के श्रीलंका में जो सिलोन हुआ करता था और महाराजा अशोक ने अपनी डॉटर संघमित्रा को और पुत्र महेंद्र को जो भेजा था बुद्धिज्म के प्रोपगेशन के लिए, वो जो थॉट प्रोसेस है, जो इंडियन थिंकर्स हैं बुद्धिज्म को लेके, those things are also going to be very much part and parcel of the curriculum what we intend to offer to the learners in the entire country. मैं पुनः एक बार ज़्यादा समय न लेते हुए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज़ को साधुवाद देता हूँ। समस्त NIS परिवार की तरफ से ये आपका बड़ा सराहनीय कदम है और आने वाले समय में भोटी भाषा के प्रिजर्वेशन में और डिसेमिनेशन में और भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रिजर्वेशन में बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। आप सबका, आप लोगों ने अपना समय दिया है और जिस तरह से हम लोगों का हम भाव विभोर हो गए हैं, जिस तरह से आपने स्वागत किया है, दिल्ली में कहाँ मिलता है साहब ऐसा, इतनी शुद्ध हवा और इतना जो आत्मीयता, एक वी कुड फील द सेंस ऑफ बॉन्डिंग, we could feel the sense of emotional bonding what we have developed here in this conference hall within such a short span of time 10 मिनट में। उसके लिए आप सबको मेरा साधुवाद और मैं प्रणाम करता हूँ। थैंक यू। गुरुत्वपूर्ण व्याख्यान और अपने संस्थान से इतर जाकर हमारी आवश्यकता के अनुरूप जाकर हमारी भोटी भाषा और बौद्ध दर्शन को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए जो प्रयास आपकी तरफ से हो रहा है, हम उसके लिए बहुत आभारी हैं। और हम दिल्ली से आए हुए NIOS के सचिव महोदय श्री प्रदीप कुमार मोहंती सर से आमंत्रित करते हैं कि अनुग्रह करते हैं कि सर कुछ सब अपनी संस्था के निदेशक डॉक्टर दोरजे साहब,
मेरे साथी डॉक्टर राजीव सिंह, डायरेक्टर एकेडमिक्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग, डीन स्टूडेंट वेलफेयर तिवारी साहब, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर सर बोरा साहब, और सामने बैठे हुए हमारे शिक्षक और छात्र छात्राएं। पहले तो हम क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है आप 9:50 में टाइम है, तो 1 घंटा शायद आप लोगों को वेट करना पड़ा, और हमें एक्चुअली थोड़ा रास्ता की पता नहीं था और थोड़ा सा हम लोग शायद ये हो गए, तो इसलिए 1 घंटा आप लोग को वेट करना पड़ा। सो सॉरी, उसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हम लोग, जब आप लोग को 1 घंटा इंतजार करना पड़ा। और दूसरा है, आज डेट है 11/11/22, तो मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ा चमत्कार है कि ये दिन भी इतिहास में के लिए ऐसा तारीख आता नहीं है। 11/11/22 जिस दिन हम लोग MOU साइन कर रहे हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन स्टडीज के साथ। तो अपने आप ये इतिहास का एक यादगार क्षण है 11/11/22, जिस दिन NIS और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन स्टडीज ने मिल के ऐसा काम या ऐसा एक सोच, ऐसे विचार आगे बढ़ा रहे हैं जिसकी जरूरतें पहले से भी थी। और मेरे खास करके दोरजे साहब, हमारे डायरेक्टर एकेडमिक्स राजीव जी, ये दोनों ही इस काम को आगे बढ़ाएं, इसलिए उन दोनों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। काम को आगे बढ़ाया है। और ये खास करके ये भोटी लैंग्वेज तो बहुत पुराना है, बहुत दर्शन बहुत पुराना है, लेकिन इसकी जरूरतें फील करना और उसको जरूरत को फील करके बड़ी कम समय में इसका कोर्स डेवलप करना, साइन करना और आगे ले जाने का जो एक सपना देखना, ये अपने आप बहुत बड़ा कदम है और देश की धरोहर है, देश की बहुत बड़ा ये हिस्सा है। इसको हमें सबको सोचना चाहिए, इसको कैसे हम अपनाएं, कैसे आगे बढ़ाएं। और इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने सोचा है, और ये शायद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ऐसा एक इंस्टीट्यूशन ही कर सकता है जो कि इस चीज को सोचा और सोचने के बाद तुरंत इम्प्लीमेंट किया, इसलिए स्वतंत्र है। तो इसलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का तमाम हमारे फैकल्टी, डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन, सभी को हम लोग साधुवाद देना चाहिए। इस काम को उन्होंने किया और करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये शायद पहला स्टेप है, क्योंकि MOU साइन करना हमारा पहला स्टेप ही होता है। और उसको कितना हम सच में सार्थक बनाते हैं, कितना इस चीज को करने के लिए कोशिश करते हैं और इसको कार्यान्वयन करके सफल करते हैं, ये हमारा आगे की समय बताएगा। तो इसलिए आज का दिन तो हमें ये सोचना चाहिए कि इसको कैसे हम बिल्कुल ठोस कदम लें, इसको आगे बढ़ाएं और उसको करके दिखाएं। क्योंकि ये लैंग्वेज इतना बड़ा, इतने बड़ी संख्या में लोग बोलते हैं, और ये दर्शन जो कि सारा विश्व को अभी भी जो तनाव में इस गुजर रहा है, इस तनाव में ऐसा एक दर्शन है जिस विश्व को रास्ता दिखा सकता है। तो ऐसे दर्शन और ऐसे साहित्य कैसे समाज में लोग ज्यादा से ज्यादा सीखें, पढ़ें, इसलिए हमें आगे कैसे कदम उठाएं, इसके लिए हमें सोचना चाहिए और करना चाहिए। तो मुझे लगता है हम इस चीज को दोनों संस्था मिल के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन स्टडीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, क्योंकि भोटी लैंग्वेज हम जो ऑफर कर रहे हैं सिर्फ बुद्धिस्ट के लिए नहीं या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन स्टडीज के लिए, ये सारे देश को ऑफर कर रहे हैं। और मुझे लगता है सभी को, जिसको भी इस दर्शन के बारे में पढ़ना है, सीखना है, इस लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए। तो हम अगर शायद इसको ऑफर करें और इसकी संख्या बहुत संख्या में लोग पढ़ें, तो अपने आप 8th शेड्यूल में इसका स्थान मिल जाएगा। तो इसलिए ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का एक अच्छा कदम है, जिस चीज को सोचा, समझा और करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है और इसको आगे बढ़ के और बहुत सारी चीजें हम कर पाए, और खाली ये 2 चीज नहीं, और भी नए नए कोर्स कैसे अपने जीवन को जो परिवर्तन करने का जो सामर्थ्य है उसको कैसे बनाएं। अगर ऐसा कोई सोच है, विचार है, बिल्कुल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ऐसा संस्था है, आप उसको विचार को लेके आ सकते हैं और उसको हम अपना सकते हैं। उसको अपना के आपको फिर उसको कोर्स ऑफर कर सकते हैं। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का एक अपने आप एक खूबी है। तो आज के दिन में और ज्यादा कुछ ना बोलते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और खास करके छात्र छात्राएं यहाँ पे, ये राजीव जी ने बहुत अच्छा से बताया, मैंने बैठे बैठे ही बोल रहा था क्योंकि साइन दिल्ली में करने का प्लान था, तो हम दिल्ली में करते तो इस शायद हम लोग इस ऐतिहासिक क्षण को मतलब मिस करते, और आप लोगों को देखने का, आपका साथ बात करने का, और ये जो आत्मीयता ये मिलने का नहीं मिलता हमें, तो इसलिए हम लोग खुशकिस्मत हैं यहाँ आए। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
It's really a great occasion for CSC Dahom that here two autonomous bodies from two different ministries, Ministry of Culture and Ministry of Education respectively, are present here to sign a historic memorandum of association related to the academic development of CSC Dahom. On behalf of Central Institute of Himalayan Cultural Studies, I would like to extend our cordial thanks and sincere gratitude to National Institute of Open Schooling for signing this MOU. And we are really very unlucky that through three different dignitaries representing the National Institute of Open Schooling, Pradeep Kumar Mahanti, Honorable Secretary, National Institute of Open Schooling, Dr. Rajiv Kumar, Director Academics, NIOS, Sri Rajesh Gautam, Regional Director, Regional Office Northeast India, Guwahati, NIOS. All these three dignitaries are present here to sign this MOU. I would like to extend our cordial thanks to all of you, sir. I would like to thank one official representing NIOS from Delhi to here. Actually, sir, facing the toil of the journey and the distance, you are here. So, on behalf of the entire staff, students, and on behalf of director, I would like to again extend our cordial thanks and gratitude to all of you. I would like to thank all the teaching and non-teaching staff of CSC Dahom. I would like to thank all the students, SWC, and all the performers who have performed the cultural dances in front of you to entertain you. I hope that will be a memorable incident for you. This event will pave a new journey for CSC Dahom to preserve Bhoti language and to open up new dimensions for both Darshan in near future, sir. So again, at last but not the least, I would like to thank the director, Dr. Gurmeet Darji, CSC Dahom, for his kind advices and sincere direction to make this event successful and eventful. Thank you very much. दर्शन दो हम पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे जो कक्षा प्रथम से लेके 12वीं कक्षा तक के बच्चों को केवल CIHC के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं अपितु पूरे देश में समस्त ऐसे बच्चे जो भोट भाषा पढ़ना चाहते हैं और जो बौद्ध दर्शन को पढ़ना चाहते हैं वो भाषा पढ़ सकेंगे। इसके साथ ही जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता जैसे और भारतीय ज्ञान परंपरा पे भी कई ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण NIOS ने किया है, उन भारतीय ज्ञान परंपरा के विषयों के साथ ही भोट एक भाषा के रूप में और बौद्ध दर्शन एक दूसरी इलेक्टिव भाषा के रूप में पूरे देश के समस्त बच्चे पढ़ सकेंगे। सर, जितना तक हमें पता है कि जो भोती है वो काफ़ी कम जगह पे एक्सेप्ट होता है, तो आज देखा है कि आप लोगों ने NOC के अंदर में एक्सेप्ट किया, तो उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, ये क्योंकि एक राष्ट्रीय बोर्ड है और ये एक शुरुआत है और आप सही कह रही हैं, भोट भाषा को पुनर्जीवित और संवर्धन और संरक्षण करने की बहुत ही ज़रूरत है। बहुत कम बच्चे हैं जो आज भोट भाषा को समझ सकते हैं और पढ़ और लिख सकते हैं भोट भाषा में। तो जब एक राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड जब एक भोट भाषा के पाठ्यक्रम का निर्माण करेगा तो हम पूर्ण आशान्वित हैं और CIHC के साथ आने के साथ ये भाषा दूर से दूर तक भारत के हर कोने में पहुंच पाएगा। तो सर, हमारे अरुणाचल के लोगों को आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगी? जैसा मेरे मित्र मोहंती जी ने भी बताया, अरुणाचल तो जहाँ पे अरुणोदय होता है, सूर्य की प्रथम किरण जो है वो अरुणाचल है और मैं कहूँ कि अरुणाचल भारत का माथा है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो अरुणाचल अपने आप में एक महान एक भारतीय संस्कृति और सभ्यता को संजोए हुए एक राज्य है जो भारत का भिन्न अंग है और दिल्ली से हम लोग आए हैं और ये एक सार्थक प्रयास है जो आने वाले समय में बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा पूरे देश में। थैंक यू सर। सबसे पहले तो अरुणाचल टुडे को थैंक यू बोलते हूँ कि वो कवरेज के लिए आया। हम लोग का एक MOU का एक सेरेमनी था आज, जो कि नेशनल ओपन स्कूल दिल्ली हेडक्वार्टर और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज़ जो यहाँ दाहू में है, उनके बीच में एक MOU समझौता है जो कि एक रिकॉग्नाइज बोर्ड के अंदर हम लोग सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का कोर्स जो कि 9 से लेके 12 तक का जो ये है क्लासेस, उसमें भोटी और बौद्ध शास्त्र जो अपना भोटी लैंग्वेज में उस कोर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए आने वाला वक्त मार्च से हम लोग का नया जो सत्र या नया जो एडमिशन होगा वो NIOS बोर्ड के अंदर होगा, जो कि उसका मान्यता होगा थ्रू आउट द नेशनल, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का एक बोर्ड है, तो इसका जो रिकॉग्निशन जो
देश भर में रिकॉग्नाइज है, तो इसके लिए कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। जो पहले हम लोगों का थोड़ा बहुत दिक्कत आते थे, जो प्रीवियस एफिलिएशन बोर्ड है उसकी वजह से, तो उसी के सिलसिले में आज एक दिल्ली से आपका नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल ओपन स्कूल के हेडक्वार्टर से सेक्रेटरी आए थे और साथ साथ डायरेक्टर एकेडमिक्स भी आए थे, तो उनके थ्रू हम लोग का MOU साइन हुआ है आज। सर, काफ़ी कम लोग इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं, तो आप हमें थोड़ा डिटेल में बता दीजिए कि कब स्टैब्लिश हुए थे और यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। जी, ये 2003 में हिज होलीनेस सोना रिम्पोचे ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। एज ए NGO ये शुरू हुआ था 2003 में BCPS के अंडर, जो GRL मोनेस्ट्री के एक सोसाइटी है बोमदिला मोनेस्ट्री के, तो उस सोसाइटी के अंदर ये इंस्टीट्यूट को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस प्रीवियस जो हिज होलीनेस सोना रिम्पोचे ने इसको इंट्रोड्यूस किया 2003 में, और अगस्त 8 तारीख को ये इंट्रोड्यूस हुआ था, फर्स्ट फाउंडेशन डे। आफ्टर दैट फिर ये 2010 में इन रिक्वेस्ट ऑफ द NGO मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने टेक ओवर किया था 2010 में। तो उसके बाद 2010 के बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ही ये एक संस्था जो है चल रहा है। इसका आई थिंक हम लोग के अंडर क्लासेस तो चलता है 9 से लेके मास्टर डिग्री तक। साथ साथ यहाँ का जितने भी बच्चे हैं वो ज़्यादातर आपका तावांग, दिरंग और कलकथांग और जो अरुणाचल के दूसरे पार्ट में, इसका ज़्यादातर शायद इनके इंस्टीट्यूट के बारे में इतना नहीं पता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ पहले जो एक ये था कि कुछ प्रॉब्लम्स थे, जो प्रॉब्लम अभी रिजॉल्व हुआ मैं आने के बाद, जो जिसकी वजह से अभी बहुत फास्ट ट्रैक पे ये ग्रो हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरली एज वेल एज एकेडमिकली। तो हम कोशिश करते हैं कि आने वाले वक्त में सभी को कोई ना कोई इस विषय में, अलग अलग विषय में इसमें पढ़ने के लिए भी मौका मिलेंगे। सर, जितना तक हमें सुनने में आता है कि काफ़ी लोग को लगता है कि यहाँ पे सिर्फ बोटी पढ़ाया जाते थे, उस पर आपको क्या कहना है? जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर एक BTI बोल के एक ये है, सेक्शन है, बुद्धिस्ट टिबेटियन इंस्टीट्यूशन एक सेक्शन है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ये क्या बोलते हैं, एक स्कीम है जो कि एक जो प्रमोशन करना है टिबेटियन इंस्टीट्यूशंस या उनके कल्चर या ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए। तो उसी को ऑब्जेक्टिव रखते हुए इंस्टीट्यूट को खोला गया है, जो कि भारत में इस तरह 4 इंस्टीट्यूट है। एक हमारा ये दाहुंग है, एक आपका कार्ट्स है जो सरनाथ में है, एक लद्दाख में है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ बोल के, और एक राजगीर में है नवा नालंदा महावीरा बोल के। तो ये चारों जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की BTI इंस्टीट्यूट के स्कीम के अंदर रहता है, जो कि बुद्धिस्ट टिबेटियन इंस्टीट्यूट एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, जो ताकि कल्चर और उस बॉडी को ही प्रिजर्व करने के लिए, जो टिबेटियन ट्रेडिशन है उसको, कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए इसको एक मोटिव है। इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग स्ट्रेस देता है कि टिबेटियन कल्चर यानी कि यहाँ का जो बोटिन हिमालयन कल्चर है उसको प्रिजर्व कैसे किया जाए थ्रू द मीडियम ऑफ बोटी एज वेल एज दी अदर कल्चर, जो बहुत शास्त्रा है या जो यहाँ का हिमालयन क्षेत्र में जो ज़्यादातर चलता है, उस कल्चर, आर्ट कल्चर को, उसको ज़्यादातर स्ट्रेस दे कि उसका पाठ्यक्रम या उसका जो करिकुलम या उसका कोर्स स्ट्रक्चर हम लोग बना के उसको पढ़ाने का कोशिश करते हैं यहाँ। तो सर, आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट के बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहूँगा कि ये अभी तो जस्ट शुरुआत ही हुआ है, मैं आके अभी 2 साल ही हुआ है, तो अभी हम लोग इसका फुल फ्लेज एक यूनिवर्सिटी के रूप में देख रहा है। अभी हम लोग ये जो लैंड तो अब रिजॉल्व हो गया, नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम लोग इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत फास्ट ट्रैक पे हम लोग जो लोग कर रहे हैं फुल फ्लेज मास्टर प्लान के साथ, जिसके अंदर करीब 3000 बच्चे और करीब 400 फैकल्टी टीचर्स विचर्स बैठ के रेसिडेंशियली अलग अलग करीब से कम 24 से 25 डिपार्टमेंट डिफरेंट खोलेंगे अलग अलग स्ट्रीम के। इसमें एक ट्रेडिशनल और कल्चर का भी एजुकेशन होगा, साथ साथ हम कुछ मॉडर्न जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स भी उसको भी शुरू करने वाले हैं आने वाला वक्त में। होपफुली ये इस वेस्ट केमांग साइड और जो अरुणाचल की ईस्ट पार्ट है तो वेस्ट साइड वाला है, इस साइड में सबसे शायद मशहूर या प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट के रूप में मैं देखना चाहूँगा नियर फ्यूचर में। तो हम उसी की दिशा की और बढ़ रहा है और कर भी रहा है, तो आगे आने वाला वक्त में शायद सभी लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से इसका लाभ होंगे। ये थैंक यू सर। थैंक यू।